to start the proceedings of this national lecture seminar. Thank you, sir. So first of all, I welcome all of you. It's give me a immense pleasure to welcome you all in today's national lecture series on NEP 2020 entitled Comprehensive Understanding on National Education Policy 2020, organizing by the Shahid Mahendra Karma Vishwavidyalaya Bastar. First of all, I express my sincere gratitude and welcome to respected Honorable Vice Chancellor Professor Manoj Kumar Srivastava sir, respected Professor Narendra Kumar Pandey sir, the invited resource persons from Lucknow University, Professor Abhishek Kumar Bajpayee, Registrar of the University, respected all the EC members, respected members of academic councils and different board of studies of the university, respected principals, our 53 affiliated colleges, all head of the department of the university, faculty members, and all the faculty members of affiliated colleges and the students of the university. So today we are gathered and joined online in this national lecture series on comprehensive understanding on national education policy 2020 to explore into an important and transformative topics that shapes the future of education in our country. This lecture series is basically organized to create understanding on national education policy and to help and support our government and private affiliated college of this university and others with the objective to encourage and promote the economic environment and promotion of the quality in the teaching, learning and research in the colleges and in the university. This landmark policy introduced by the Government of India in 2020 is a comprehensive and forward-thinking initiatives that seeks to address the ever-evolving needs of our education system in 21st century and to enhance the GR in the country. Today's lecture brings about the detailed knowledge on the NEP 2020 and key purpose, objectives, strategies and reforms outlined in the policy document. Some of the key objectives of the NEP such as promoting holistic education, encouraging a multidisciplinary approach, fostering the creativity and critical thinkings, implementing the technology in education and ensuring the inclusive learning environment in the colleges and the universities. With this word, I once again welcome you all and extend my thanks to the specifically the invited speaker and resource person, Professor Narendra Kumar Pandey sir from Lucknow University. And I now request Honorable Vice Chancellor sir to please propose a keynote on the inaugural of this national lecture series, sir. Namaskar. Professor N.K. Pandey ji, Professor Sharad Nema, Coordinator IQAC, Professor Abhishek Bajpayee ji, कुल सचिव शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय, सभागार में उपस्थित डॉक्टर आनंद मूर्ति मिश्रा जी, सभी महाविद्यालयों से जुड़े हुए प्राचार्यगण, सभी सम्मानित आचार्य, पंडित रविशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय से जुड़े हुए सभी शिक्षक साथी एवं वरिष्ठ आचार्यगण, श्री अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय से जुड़े हुए माननीय कुलपति जी एवं अन्य सभी शिक्षकगण, विश्वविद्यालय के सभी शिक्षक साथी, विभागाध्यक्ष, छात्र छात्राएं तथा बस्तर क्षेत्र तथा रायपुर से जुड़े हुए सभी सम्मानित छायाकार पत्रकार बंधु,
आप सभी को मेरा प्रणाम और पूरे विश्वविद्यालय की ओर से प्रोफेसर N.K. पांडे जी का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रोफेसर N.K. पांडे जी फिजिक्स के एक पूरे भारतवर्ष में लीडिंग साइंटिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। वो फिजिसिस्ट हैं। नैनो टेक्नोलॉजी, फाइबर ऑप्टिक्स और सेंसर्स में उनके काम हैं। यूट्यूब में उनके वीडियो लेक्चर्स हमारे छात्र पढ़ते भी रहते हैं और जो शोधकर्ता हैं वो भी उनको देखते हैं। एक विश्वविद्यालय के लिए सुनहरा अवसर है कि प्रोफेसर N.K. पांडे जी पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के एक विशेषज्ञ के रूप में जाने जाते हैं और अभी निकट भविष्य में मैंने उनसे हमारे बस्तर विश्वविद्यालय से अब शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है से आग्रह किया था कि हमारे महाविद्यालयों के शिक्षकों के लिए विशेष रूप से तथा विश्वविद्यालय के लिए भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर एक अपना व्याख्यान प्रस्तुत करने का कृपा करें। तो उन्होंने मेरे इस आग्रह को स्वीकार किया। मैं प्रोफेसर N.K. पांडे जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय शिक्षा परंपरा पूरे विश्व में सबसे प्राचीन शिक्षा के रूप में वैदिक काल से जानी जाती है और आगे चल के ईसा से 700 और 450 वर्ष पूर्व तक्षशिला तथा नालंदा विश्वविद्यालय और 8वीं सदी के विक्रमशिला विश्वविद्यालय से पूरे विश्व के छात्र जुड़ते थे और जियोमेट्री, नक्षत्र शास्त्र, खगोल शास्त्र जिसे हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, अंक विज्ञान, इंडियन फिलॉसफी, चिकित्सा विज्ञान, वुड कार्विंग तथा अष्टांग योग जैसे अनेक कलाओं में भारत के गुरु प्राचीन काल से पूरे विश्व को शिक्षा प्रदान करने का कार्य करते रहे हैं। हम सभी बाणभट्ट, कादम्बरी, 16, 32 और 64 कलाओं में शिक्षा दिए जाने के भारतीय ज्ञान परंपरा के विषय में जानते हैं और उसके विषय में अधिक बोलने की आवश्यकता नहीं है। परंतु जब से ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन 17वीं सेंचुरी 1835 में प्रारंभ हुआ, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति के विषय में हम सभी लोग समय समय पर चर्चा करते ही रहते हैं। पूरे विश्व की जीडीपी का भारत का 30 से 35% शेयर था। दुर्भाग्यवश अंग्रेजों ने जिस प्रकार से भारत की शिक्षा व्यवस्था पर प्रहार किया, जब हमारा भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ और उस समय जीडीपी घटकर मात्र 2% रह गया। 1986 के बाद से लगभग 34 वर्ष के पश्चात भारत पूरे विश्व पटल पर वैश्विक ज्ञान महाशक्ति के रूप में पुनः स्थापित होने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का अनुमोदन किया और पूरे भारत में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू करने का निर्णय लिया गया। और मैं इस विषय में बस इतना ही कहना चाहता हूं कि जो भारतीय दर्शन है, भारतीय शिक्षा परंपरा है, वह वेल राउंडेड पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑफ अ स्टूडेंट और होलिस्टिक एजुकेशन पर आधारित। मैं एक छोटी सी कहानी बताकर और फिर मैं
प्रोफेसर एन के पांडे जी से आग्रह करूंगा कि वो विषय को नीट कॉलेज में उन्होंने इंग्लिश में शिक्षा प्राप्त करनी प्रारंभ की थी और वो शिक्षा भी एक सेमेस्टर के बाद छोड़ दी थी। उन्होंने शेक्सपियर को पढ़ा, उन्होंने डांस पढ़ा और कैलीग्राफी में उनकी विशेषज्ञता हासिल की। आगे चल के उनका इंटरेस्ट जब बुद्धिज्म में हुआ तो वो उन्होंने भारत में विजिट की और इस पिलग्रिमेज के माध्यम से उन्होंने मिनिमलिज्म स्वतः डेवलप किया। ये उनका खुद का विकास है और बुद्धिज्म का पालन करते हुए जब वो बाद में वापस अपने देश में गए तो वहां उनको एक साथी मिला जिसका नाम था स्टीव वॉजनेक, जिनके साथ मिलकर उस समय कंप्यूटर्स बहुत बड़े हुआ करते थे और ये उनका कॉन्सेप्ट था कंप्यूटर्स का प्रयोग बहुत हैंडी होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। और उनके साथ कोलैबोरेट करके और जितना भी उन्होंने यूनिक एक्सपीरियंसेस एंड नॉलेज गेन की थी, इनका सम्मिलित रूप से एप्पल वन, फिर उसके बाद 1976 में एप्पल वन, फिर उसके बाद आगे चल के एप्पल टू, ये कंप्यूटिंग मशीन्स उन्होंने ईजाद की। ये वो समय था जब उन्होंने अपनी कैलीग्राफी को, और आज भी हम एप्पल मोबाइल्स में देखते हैं कि उनके फंड्स इतने खूबसूरत होते हैं कि वो अनमैच्ड है एज कम्पेयर टू द अदर फंड्स फाउंड इन एंड्रॉयड एंड अदर मोबाइल्स। मिनिमाइजेशन प्रोसीजर्स का ये है कि एस्थेटिक सेंस ऑफ एप्पल इज वन पॉइंट, but this minimalistic approach and the design leads to Apple mobiles and other legendary products of Apple. They are so sophisticated, exclusive and elegant, and they are very simple. ऐसे लोग जिन्होंने एप्पल मशीन्स को यूज किए हैं उनके फीचर्स को समझते हैं। दे आर एक्सट्रीमली सिंपल एंड वेरी इफेक्टिव। और ये एक प्रतिफल है कि बहुत सारे ज्ञान के स्ट्रीम्स को एक साथ सम्मिलित करके एक ऐसे इनोवेशन करना जो पूरे विश्व के आगे एक लेजेंडरी एग्जाम्पल है, वो आइकन है। और इस माध्यम से मैं इतना ही एक संदेश के रूप में और विषय के आगे बढ़ाने के लिए रखना चाहता हूँ कि होलिस्टिक एजुकेशन का महत्वपूर्ण योगदान है विकास के लिए, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। अभी कुछ दिन पहले मैं प्रोफेसर एन के पांडे जी का एक टॉक सुन रहा था, तो उन्होंने बोला कि एक ऐसा इंजीनियर जो बीई इलेक्ट्रॉनिक्स है और जब उसके घर में लाइट चली जाती है तो वो हेल्पलेस होता है और किसी इलेक्ट्रीशियन को कॉल करता है। तो यही कारण है कि हमारी एजुकेशन होलिस्टिक एजुकेशन नहीं है। हम अपने छात्रों को प्रश्न पूछने की अनुमति प्रायः नहीं देते। बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जो देते हैं, परंतु ऐसा रिवाज है कि हम प्रश्न पूछने नहीं देते, और प्रश्न से ही इनोवेशन होता है। मैं स्टीव जॉब्स को भी पढ़ रहा था और उसने तो बहुत ही एक्सट्रीम में लिखा है, तो मैं इस सेमिनार में तो नहीं बोल सकता, पर उनका कहना है कि जो फॉर्मल एजुकेशन है वो दूसरों के चिंतन और ज्ञान के माध्यम से प्राप्त शिक्षा को हमारे दिमाग में डालने की शिक्षा है, हमारे इनोवेशन से ज्ञान प्राप्त करने की शिक्षा नहीं है। तो इसी प्रकार इन सारी बातों को समावेशित करते हुए मैंने एक छोटा सा एक विषय आपके सामने रखा है। वृहत रूप से प्रोफेसर एन के पांडे जी हमारे बीच उपलब्ध हैं और मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, उनका स्वागत भी करता हूँ। और उन्होंने इस विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर विषय पे व्याख्यान देने के लिए हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया है। हम सभी पूरे विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आपको धन्यवाद देते हैं और आग्रह करते हैं प्रोफेसर नेमा से कि आप उनका परिचय देते हुए आग्रह करें, वो अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने प्राचीन शिक्षा के बारे में विस्तृत से हम लोगों को जानकारी दी। मैं बड़े सम्मान के साथ हमारे आज के मुख्य वक्ता प्रोफेसर नरेंद्र कुमार पांडे सर, जो कि बहुत अच्छे एजुकेशनिस्ट हैं,
अभी माननीय कुलपति साहब ने बताया, एजुकेशनिस्ट होने के साथ में बहुत अच्छे साइंटिस्ट भी हैं और हमारे एक अच्छे शिक्षाविद भी हैं। तो मैं माननीय कुलपति सर ने मुझे एक पेज का दिया, बट लेकिन वो कई किताबें इस बायोडेटा से लिखी जा सकती। मैं अनुमति चाहता हूँ कि उनके बायोडेटा को मैं पढ़ने की। प्रोफेसर नरेंद्र कुमार पांडे सर, आप लखनऊ यूनिवर्सिटी से हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी जो है नेक में A++ ग्रेडेड यूनिवर्सिटी है। And Professor Narendra Kumar Pandey is currently serving as a head Department of Physics at the University of Lucknow. He received the BSc in honors in physics from St. Xavier College, Ranchi in 1985, followed by MSc in physics from Indian Institute of Technology, Delhi in 1987, and did PhD from Indian Institute of Technology, Delhi, and also qualified JRF NET and GATE examinations. He begins his academic journey at the University of Lucknow as a lecturer in 1990 and has been working as a professor since 2007. Pandey has an immense academic background, having been a former nominee to the Senate and the Board for Postgraduate Studies at IIT Delhi, as well as a former member of Executive Council at University of Lucknow. He was selected for the flagship program of Ministry of Human Resources Development, New Delhi, Leadership for Academicians program, visited for academic leadership training to Indian Institute of Technology, Kharagpur, and Churchill College, Cambridge University during 2019-2020. Additionally, he currently serves as a National Accreditation and Assessment Council as a assessor. Throughout his career, Professor Pandey held various administrative roles, including spokesperson of the university, director of the Cultural Activity Board, coordinator of Lucknow University Student Union, and executive council member of the University of Lucknow. His research contribution have been commendable, with more than 150 research papers published in both international and national journals, as well as numerous conference publications. Moreover, he has delivered more than 60 invited lectures and organized 6 national conferences on nanotechnology. 13 students have done PhD under his guidance. Professor Pandey primary areas of research interest lies in the fiber optic sensors and solid state sensors, where his work has made notable contribution to the field. His dedication and achievements have significantly enriched the academic community of the University of Lucknow. With this brief biodata, I request Professor Pandey sir to start your lecture and share your views and opinions about the national education policy. Please, sir. Thank you very much, Dr. Sharad Nimaji, for this Thank kind of introduction to me. And especially I'm thankful to Professor Manoj Kumar Srivastava, Honorable Vice Chancellor of the University, for giving me the opportunity to deliver a lecture on NEP. Initially, when the request was made by Honorable Vice Chancellor, I thought it would be a small gathering. Couple of people will be there and would be delivering it. But I was not expecting such a large gathering for this NEP. So nonetheless, thank you very much, colleagues. So it's the knowledge about NEP that I am having, I'm going to share with my colleagues. So it should be treated as sharing of my knowledge with other colleagues and not as a lecture. So that is my request to everybody. So I would like to go in for it. So I would like to share it. Just a moment. Trying to understand new education policy 2020 comprehensively. So my language will be a mix of Hindi and English so that everybody understands it comfortably.
And at the end of it, if you have questions, I will be ready to answer them all. So, you see, actually, before this NEP 2020, there were two more earlier national policy of education. They were called NPEs, one in 1968 and the other one in 1986. The education policy that came in 1968, it was a couple of years just after the independence. And therefore, the focus on NPE 1968 was just to give education reach to the whole mass of the country. So, आप ये समझ सकते हैं कि जो हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 का था, उसमें पूरे के पूरे लोगों तक शिक्षा के प्रचार और प्रसार के ऊपर में, प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर में फोकस किया गया। 1986 के नेशनल एजुकेशन पॉलिसी तक जब हम पहुंचे, तो कुछ हद तक हम उसको कवर कर चुके थे। वी हैड कवर्ड अ लिटिल बिट ऑफ दैट एंड वी हैड टू कवर सम मोर। सो यूनिवर्सल एजुकेशन वाज वन सच पार्ट जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 का एक प्राइमरी एजेंडा था। एंड अदर देन दैट, उस समय तक सारी की सारी दुनिया, ऑल द होल वर्ल्ड वाज डिवाइडेड. It was not like a small community that we have today. The whole world was divided. The distances were far away. So in India, what was we were looking for was inward, for India only. So there was a need for a standardization of education. So the main aim of 1986 education policy was universalization of education, compulsory education up to age 14, and of course standardization of education to understand our own culture, and with our own culture we would be developing our country. We were looking inward, and not only us, the whole world, all the countries in the world were looking inward to themselves. They were not opening out. But you see, the scenario changed after in early 1990s because of the, you can see, globalization and universal and internationalization of education. Actually, it was the globalization that led to the internationalization of education. So countries had started opening out. सारे के सारे जो देश थे विश्व के, वो बाहर की तरफ देखने लगे और अलग अलग देशों के बीच में नए संबंध बनने लगे. Therefore, अब जो हमारी जरूरत थी ओपननेस के कारण, और सबसे बड़ी बात थी कि इकोनॉमी हमारी ओपन आउट हो चुकी थी. So there was a need for collaboration, there was a need for leadership among students coming out who could lead the country in internationalization, in internationalization of economy, of education, etc. यानी हमें ऐसे नागरिकों की अब जरूरत थी जो हमारे देश को दूसरे देशों के साथ जोड़ने में और वहां के साथ में वहां के एजुकेशन से हमारे एजुकेशन के, वहां के टेक्नोलॉजी को हमारी टेक्नोलॉजी से इंटीग्रेट कर सकते हो. ऐसे हमारे स्टूडेंट्स की हमें जरूरत पड़ी. अब हमें सिर्फ इनवर्ड देख करके हमें यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एजुकेशन नहीं चाहिए था. हमें अब वर्ल्ड लीडर्स चाहिए थे, ऐसे स्टूडेंट्स जो वर्ल्ड में, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में खड़े होकर के और इंडिया को लीड कर पाए. हमें ऐसे स्टूडेंट्स की जरूरत थी. बट अनफॉर्चुनेटली हम धीरे धीरे इस दिशा में अपने एजुकेशन को ले जाने की कोशिश तो करते रहे, लेकिन हमें 34 वर्ष लग गए सेकेंड नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन के बाद कि 2020 में हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 ला पाए. सो नेचुरली, जैसा मैंने बैकग्राउंड आपको बताया कि जो उसमें हमारी नीड थी अर्ली 90s में, 1990 के शुरू के दशक में जो जरूरत थी ऐसे हमें स्टूडेंट्स प्रोड्यूस करने की, ऐसे वेल राउंडेड स्टूडेंट्स को प्रोड्यूस करने की जो न सिर्फ इंडिया को समझते हो, जो वर्ल्ड को भी समझ रहे हो, जो दूसरी कंट्रीज के साथ में आसानी से हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को डेवलप कर पाते हो, जिनके पास में स्किल सिर्फ एक सब्जेक्ट की नहीं हो कि वो सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स समझ पा रहे हो, बल्कि उनमें अदर लीडरशिप क्वालिटीज हो, उनमें अदर टाइप्स के स्किल्स हो, ताकि वो आसानी से दूसरों के साथ में संबंध बना पाए और इंडिया के इंटरेस्ट को आगे बढ़ा पाए.
सो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का जो मेन मकसद अब हमारे पास में रह जाता है वो है कि हमें ऐसे स्टूडेंट्स को, हमें ऐसे सोच लीजिए वेल राउंडेड इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करना है जो इंडिया के प्रॉब्लम को इंडिया के अनुसार सॉल्व कर पाए, प्लस इंटरनेशनल लेवल पर वो compete करके टेक्नोलॉजी में, सोशल चीजों में, पॉलिटिकल रिलेशनशिप में इंडिया को आगे इंटीग्रेट कर पाए। तो अब हमारी नीड जैसी थी, ठीक उसी के अनुसार NEP 2020 हमारा बनाया गया कि हमारे पास वेल राउंडेड हमारे स्टूडेंट्स पैदा हों जो कि हमें आगे ले जा पाए, हमारे देश को लीड कर पाए ना। अगर हम इसको थोड़ा सा और भी बड़ा करके देखना चाहें, मैं चाहता हूं कि पहले नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के भीतर के सोल को समझा जाए, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और आज इसकी आवश्यकता क्यों है। आज दुनिया में अगर कहा जाए, सारी के सारी दुनिया के सामने देयर आर 14 ग्रैंड इंजीनियरिंग चैलेंजेस। कौन कौन से हैं भाई? मेक सोलर एनर्जी इकोनॉमिकल। अभी हम लोग जो सोलर सेल्स बनाते हैं 12 से 14% उसकी एफिशिएंसी होती है। अगर उसकी एफिशिएंसी को हम बहुत बढ़ाते चले जाएं तो दुनिया की एक बहुत बड़ी नीड हमारी एनर्जी की पूरी हो पाएगी, क्योंकि सन तो हमारा इटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी है। टू इंजीनियर बेटर मेडिसिन। अभी हमारे पास कोरोना आया, हमारे पास नहीं थे मेडिसिन, हमारे पास वैक्सीन नहीं थे, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। प्रोवाइड एक्सेस टू क्लीन वाटर, सिक्योर साइबर स्पेस होना चाहिए, प्रोवाइड एनर्जी फ्रॉम फ्यूजन, प्रिवेंट न्यूक्लियर टेरर, एनहांस वर्चुअल रियलिटी, मैनेज द नाइट्रोजन साइकिल, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये लिंक है जहां से आप इसको देख सकते हैं। तो देयर आर 14 ग्रैंड चैलेंजेस द वर्ल्ड इज फेसिंग दैट वी नीड टू एड्रेस टू फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड। अगली चीज क्या है कि इंडिया इज अ सिग्नेटरी टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट एडॉप्टेड बाय यूएन इन 2015, जिसके जो 17 गोल्स हैं उसको 2030 तक इंडिया को भी फुलफिल करना है। और जो भी सिग्नेटरीज हैं, क्या क्या है वो? नो पॉवर्टी, zero hunger, affordable and clean energy, decent work and economic growth, good health, good quality, good education, quality education, clear water. So these are sustainable goals जिसको कि वर्ल्ड को देखना है। तो इन सारी चीजों को पाने के लिए वर्ल्ड में, और इसके अलावा देयर आर सर्टेन मोर चैलेंजेस। किस तरह के चैलेंजेस हैं? देखिए, द वर्ल्ड इज अंडरगोइंग रैपिड चेंजेस इन द नॉलेज लैंडस्केप। आज जो हमारा कंप्यूटर का नॉलेज है, अगर आप आज एक ब्रांड न्यू लैपटॉप लेते हैं, उसके सॉफ्टवेयर आज से 1 साल के बाद में पुराने हो जा रहे हैं। जो भी आज की मेडिसिन से 1 साल के बाद में सारी बदल जाए। द होल नॉलेज इज चेंजिंग वेरी फास्ट इन द वर्ल्ड। Various dramatic scientific and technological advances like the rise of big data, machine learning, artificial intelligence। अभी artificial intelligence का बोलबाला है, कल किसका रहेगा हमें पता नहीं। इतना फास्ट चीजें चेंज हो रही हैं। क्लाइमेट किस तरह से चेंज हो रहा है, कैसे पॉल्यूशन इंक्रीज कर रहा है, कैसे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जो है डिप्लीट कर रहे हैं। इसके अलावा बीच बीच में अभी कोरोना पैंडेमिक आया, इमरजेंस ऑफ एपिडेमिक, पैंडेमिक, कॉल फॉर कोलैबोरेटिव रिसर्च इन इन्फेक्शियस डिजीज मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन्स। ये सारी चीजें हमें मजबूर कर रही हैं कि हम इस तरह का एजुकेशन दें जो अभी के एजुकेशन से डिफरेंट हो, अभी तक जो हम एजुकेशन लेकर के आ रहे हैं उससे डिफरेंट हो, यानी मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग। ये मल्टी डिसिप्लिनरी क्या है, मैं इसको भी समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन बहरहाल आप ये देखिए, मैं अगर पर्सनल एग्जांपल लूं, मैंने फिजिक्स में ऑनर्स किया, फिजिक्स में मास्टर्स किया, फिजिक्स में रिसर्च किया, और जब कोरोना पैंडेमिक आया तो 2020 में मैं अपनी सोसाइटी, अपने नेशन के लिए इतने बड़े पैंडेमिक निर्माण किया जो हमारे लिए इतना लाइफ सेविंग इंस्ट्रूमेंट बन करके कोरोना पैंडेमिक के रूप में आया। या आप दूसरा एग्जांपल लीजिए कि आपको एक कम्युनिटी डेवलपमेंट का प्रोग्राम करना है किसी भी एरिया में, छत्तीसगढ़ से जबकि किसी रिमोट एरिया में जाकर के आप एक को डेवलपमेंट प्रोग्राम करना है। आप कैसे डेवलपमेंट प्रोग्राम करेंगे? वहां पर सैनिटेशन की जरूरत है, आपको सैनिटेशन एक्सपर्ट्स चाहिए। आपको और कौन चाहिए वहां पर? आपको वहां पर एक, समझ लीजिए कि बेसिक साइंस को समझने वाला, सैनिटेशन ही नहीं बल्कि वहां पर किस तरह के पानी का सप्लाई है, किस तरह का कल्चरल एटमॉस्फेयर है, वो जो वहां पर लोग रहते हैं वो किस तरह के कल्चर को इम्बाइब करते हैं, उनको समझना होगा। वो डेवलपमेंट को किस तरह से देखते हैं, वो ऐसा तो नहीं थ्रेटन फील करते हैं कि हमारा सब कुछ नुकसान हो जाएगा।
तो इन सारी चीजों को समझने के लिए एक अप्रोच होता है कि इतने सारे लोगों को इकट्ठा करके वहां पर आप प्लानिंग के लिए भेजिए। और दूसरा मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच का जो थीम है वो क्या है, आप एक ऐसा कुरिकुलम डिजाइन करें जिसमें जो स्टूडेंट्स एनरोल हों 20, 25, 30, उनको न सिर्फ सैनिटेशन, न सिर्फ कल्चरल चीजें, न सिर्फ ये एक या दो चीजों का एक्सपर्ट बना करके बाकी चीजों का भी नॉलेज उनको देना जरूरी है, ताकि वो जब वहां प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करें कम्युनिटी डेवलपमेंट को, तो वो कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हर चीज को समझ करके इंप्लीमेंट करें। अन्यथा आप जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि किसी भी एरिया में आप बहुत सारा भी डेवलपमेंट और पैसे लेकर के सरकार चली जाती है, वहां के लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं होता है। तो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच का दो मतलब होता है कि अलग अलग सब्जेक्ट को लेकर के पढ़े हुए एक्सपर्ट्स को ला करके एक प्रोग्राम को लॉन्च करें, या ऐसे स्टूडेंट्स ही आप पैदा करें जिनमें एक या दो सब्जेक्ट्स के बारे में एक्सपर्टीज हो और बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में भी उनको अच्छा नॉलेज हो, जिससे कि वो उस पूरे प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करने में उनको किसी तरह की परेशानी नहीं। तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी जो हमारा एबिलिटीज हैं अक्रॉस साइंसेस, अगर आप बेसिक साइंस पढ़ रहे हैं तो आपको सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज को पढ़ना पड़ेगा, क्लाइमेट चेंज को पढ़ना पड़ेगा। अगर आप सोशल साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो आपको बेसिक साइंस भी समझनी पड़ेगी, क्योंकि तभी आप कॉम्प्रिहेंसिव वे में एक प्लान को आप इंप्लीमेंट करने में सक्षम होंगे। अन्यथा आधा एक चीज का नॉलेज होगा, बाकी पार्ट का नहीं, तो आप नहीं कर पाएंगे। नाउ देयर विल बी अ साइजेबल शिफ्ट in how we meet world's energy, water, food and sanitation needs, and this shift will again result in the need for new skilled labor। गौर करिएगा, मैं जो बार बार कह रहा हूं कि हमेशा आपको चेंजिंग वर्ल्ड एनवायरनमेंट में न्यू स्किल्ड लेबर चाहिए। कैसे? बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, एग्रीकल्चर में, क्लाइमेट साइंस में एंड सोशल साइंस में। ये हमारी नीड है आज के डेवलप्ड वर्ल्ड की, और इसमें कंपीट करने के लिए आपको इस तरह के इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है। और इसी इंग्रेडिएंट्स के बैकग्राउंड में एनईपी 2020 आया है, इन सारी चीजों को स्टडी करके मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन को लेकर के पूरा प्लान्ड वे में आया है। यानी क्या हमें चाहिए? क्वालिटी एजुकेशन। क्या चाहिए? एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन। क्या चाहिए? इक्विटी एंड इंक्लूसिविटी इन एजुकेशन। और सबका जो परिणाम है, सब कुछ एक साथ जो मिल सकता है, वो किस में मिलेगा? मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन में। So what is the vision of new education policy 20, जिसको हम विजन डॉक्यूमेंट कहते हैं, जो विजन स्टेटमेंट कहते हैं, वो क्या है? तो हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का जो विजन है, टू डेवलप लर्नर्स इनटू होलिस्टिक इंडिविजुअल्स। होलिस्टिक का मतलब मैं अभी बताऊंगा, एंड ग्लोबल सिटीजन। आज पहले स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एजुकेशन में हमें इंडियन स्टूडेंट्स की जो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने वाले स्टूडेंट्स की जरूरत थी 1986 नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन में। आज दुनिया में कंपीट करने के लिए, आज दुनिया में डेवलप करने के लिए, आज किसी भी पॉलिसी को इंप्लीमेंट कॉम्प्रिहेंसिवली करने के लिए हमें होलिस्टिक इंडिविजुअल चाहिए। ऑनरेबल वाइस चांसलर ने भी आपको बताया कि भाई इस तरह के इंडिविजुअल की आज जरूरत है, उनका भी नॉलेज बहुत अच्छा खासा इसमें है। तो मैं उसी होलिस्टिक इंडिविजुअल, वेल राउंडेड इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं। हमें ग्लोबल सिटीजन्स चाहिए, that they are aware of their roles and responsibilities in world changing scenario, to instill in learners a deep rooted pride in being Indian in thought, spirit, intellect and deed। और करिए, अभी ऑनरेबल वाइस चांसलर ने बड़ी अच्छी बात कही कि हमारे एंशिएंट नॉलेज सिस्टम में इस तरह की बातें थी। आज जो हम वेस्ट से उसको लेने की कोशिश कर रहे हैं, उसको बोरो कर रहे हैं, उसको इंपोर्ट कर रहे हैं, वो हमारे पुराने यूनिवर्सिटीज में वो सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स थे। हमारा जो यहाँ पर एजुकेशन था वो मल्टी डिसिप्लिनरी था, जिसको हम लिबरल आर्ट्स कहते हैं, वो हमारे यहाँ पर था, लेकिन काल चक्र की गति में वो हमारे हाथ से निकल गया। और एक बार हम वेस्ट को देख करके वापस लाने की कोशिश करते हैं, तो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहता है ये तो हमारे पास था, हमारे पास है, सो फील प्राइड। आप गर्व महसूस करिए कि ये हमारा ही है और हम अपनी ही चीज इंप्लीमेंट कर रहे हैं और ये हमने ही दुनिया को दिया है। To develop among the students a deep sense of respect toward fundamental duties and constitutional values. Mind it, this point is also very, very important. आप एक बेसिक साइंस को पढ़ के बड़े अच्छे साइंटिस्ट बन जाते हैं और आपके अंदर में
फंडामेंटल ड्यूटीज आपकी क्या हैं, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल 51 में है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज क्या है आपको नहीं समझ में आता है, आप कम्युनिटी के साथ में अपने आप को इंटीग्रेट नहीं कर पाते हैं, उनके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, तो आपका नॉलेज आप तक सीमित हो जाता है, हमारे सोसाइटी को, हमारे देश को आपसे कोई फायदा नहीं होगा। नॉट ओनली दिस, अगर आप में ये वैल्यूज नहीं आती हैं तो आप जब एम्प्लॉयमेंट के लाइफ में जाते हैं तो आज के यंग जनरेशन के बच्चों को आप देख लीजिए, उनसे पूछिए, बात करिए कुछ देर तक बैठ करके, आपको पता चलेगा कि हम लोग जिस तरह से पढ़ करके बड़े हुए उससे कहीं ज्यादा उनके एम्प्लॉयमेंट के जिंदगी में स्ट्रेस वो झेल रहे हैं, इतना तनाव वो झेल रहे हैं। तो आज का एजुकेशन पॉलिसी न्यू एनईपी 2020 उनके उस तनाव को भी एड्रेस कर रहा है कि आज हम उनको ऐसे ऐसे ट्रेनिंग दे करके भेजें कि बाद में न सिर्फ एक सफल इंडिविजुअल बने, एक सफल एम्प्लॉय बने, एक सफल एंटरप्रेन्योर बने, बल्कि अपने लाइफ को डी स्ट्रेस कैसे करें, अच्छी जिंदगी कैसे जिए, क्वालिटी कैसे करके लाइफ की बनाए, वर्क लाइफ में बैलेंस कैसे बनाए, इसको भी एनईपी 2020 प्रमोट कर रहा है। तो एनईपी 2020 का जो सोल है, जो उसकी आत्मा है, वो आत्मा ये है कि आप होलिस्टिक वेल राउंडेड इंडिविजुअल्स ऐसे प्रोड्यूस करिए जो न सिर्फ डेवलपमेंट में मदद करें, न सिर्फ एक्सपर्ट्स हो एक दो सब्जेक्ट के, बल्कि बहुत सारे एस्पेक्ट्स को भी जाने, बहुत सारे सब्जेक्ट्स को भी जाने, वो अपने लाइफ की क्वालिटी को भी इंप्रूव करें और एक अच्छा एम्प्लॉय बने। और सबसे बड़ी बात, अगर सारी चीजें किसी इंडिविजुअल में आए तो वो एक अच्छा सिटीजन हमारे देश का बन पाएगा। ये एनईपी 2020 का विजन है। सो मिशन क्या है 2020 का? टू डेवलप इनटू एन एनलाइटेंड नेशन दैट हैज कैपेबिलिटी टू सॉल्व इट्स ओन प्रॉब्लम्स। हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर ने कहा कि एक जमाने में हमारा 30 to 35% जीडीपी दुनिया का होता था, और फिर गिरते गिरते इतने गिर गया कि बीच में एक टर्म आने लगा हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, और फिर धीरे धीरे हम ऐसी स्थिति में जा रहे हैं कि इस बार का जो जीडीपी का प्रोजेक्शन है, जो कंट्रीब्यूशन है पूरे वर्ल्ड में, उसमें इंडिया का अभी भी 6.3 आ रहा है, जो कि बहुत कम देशों का हो रहा है। तो हम फिर उस दिशा में बढ़ रहे हैं, और एनईपी 2020 हमें उसी दिशा में बढ़ने के लिए एक बहुत बड़े पॉलिसी एंड टूल के रूप में मिल रहा है। हाँ, इंप्लीमेंटेशन कैसा होगा ये बात की बात है। इस वक्त पहले हम एनईपी 2020 को समझें ताकि हम ये समझ पाए कि ये है वही चीज जो हमें करना और हम आसानी से कर सकते हैं, लेकिन पहले समझना जरूरी है। सो व्हाट इज द नीड? इंडिया नीड टू हैव अवेकेंड, अवेयर एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजंस। इंडिया नीड टू डेवलप गुड, thoughtful, well-rounded and creative individuals through quality higher education. How can this be done? Question is, how can this be done? And the answer is by developing learners into holistic individuals. Holistic individuals में हम क्या देखना चाहते हैं? जब हम holistic individual बात करते हैं, अब हम इसको open out करते हैं। Holistic individual will have expertise in one or more specialized areas of interest at a deep level. मैं फिजिसिस्ट हूं, आप केमिस्ट्री के एक्सपर्ट हैं, आप जियोलॉजी के एक्सपर्ट हैं, आप पॉलिटिकल साइंस के एक्सपर्ट हैं, बट at the same time the person must have 21st century's capabilities across a range of disciplines: natural sciences, social sciences, arts, humanities, languages, as well as professional, technical and vocational subjects. माइंड इट, ये सारी की सारी चीजें हमारे पुराने भी एजुकेशन सिस्टम में थी, लेकिन वो कहीं खत्म हो गई। इसके साथ में अगला इंग्रेडिएंट क्या है? कैरेक्टर बिल्डिंग, एथिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी, साइंटिफिक टेम्पर, क्रिएटिविटी, स्पिरिट ऑफ सर्विस। जब ऑनरेबल वाइस चांसलर ने एक बात बड़ी अच्छी कही कि हम क्वेश्चन करने के, स्टूडेंट्स के क्वेश्चन करने को क्लास में हम डिस्कस, तो माय रिक्वेस्ट इज उनका साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करिए। साइंटिफिक टेम्पर भी हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। सो दिस इज ए होलिस्टिक इंडिविजुअल। अब थोड़ा सा आपको अंतर, कई बार आप सुनेंगे मल्टी डिसिप्लिनरी, इंटरडिसिप्लिनरी, ट्रांसडिसिप्लिनरी। ये फर्क क्या है इसमें? मैं छोटे में आपको ये समझाना चाहूंगा, इसमें फर्क आपको समझाऊंगा। इन प्लेस ऑफ गोइंग इनटू द डिटेल्स, मैं थोड़ा पिक्चर के थ्रू आपको समझाता हूं। एक होता है क्रॉस डिसिप्लिनरी से आप बात करिए, एक होता है इंट्रा जो कि अपने आप में होता है, फिजिक्स अपने आप में इंट्रा डिसिप्लिनरी है, केमिस्ट्री एक इंट्रा डिसिप्लिनरी है, एक डिसिप्लिन है। क्रॉस डिसिप्लिनरी वही चीज है
अलग अलग सब्जेक्ट्स को अलग अलग, आपस में कोई संबंध नहीं। फिजिक्स अलग चीज है, बायोलॉजी अलग चीज है, केमिस्ट्री अलग चीज है, पॉलिटिकल साइंस अलग चीज है, हिस्ट्री अलग चीज है। ये क्रॉस डिसिप्लिनरी एक प्लेट में अलग अलग, जैसे आपने बैगन रख दिया, आपने गोभी रख दिया, आपने पत्ता रख दिया, आपने भिंडी रख दी, आपने परवल रख दिया, सब कुछ अलग अलग, सारे अलग अलग डिसिप्लिन हैं, आपस में कोई संबंध नहीं, उसका कोई गोल नहीं है। दे डोंट हैव ए कंबाइंड गोल, क्रॉस डिसिप्लिनरी है। और जब आप मल्टी डिसिप्लिनरी की बात करते हैं तो आपने उनको मिला करके, काट पीट करके आपने एक सलाद दे दिया, यानी एक गोल बन गया इन सबों के एक साथ आने का, कि आपके खाने का सलाद बन गया। ये मल्टी डिसिप्लिनरी है, मतलब आप अपने अपने डिसिप्लिन्स को independent, all the disciplines are working independently, but at the same time they are collaborating together for a common goal, तो ये हुआ मल्टी डिसिप्लिनरी। एक होता है इंटरडिसिप्लिनरी। क्या होता है इंटरडिसिप्लिनरी में? क्या होता है कि इनका आपस में इंटीग्रेशन बहुत बढ़ जाता है, लेकिन अभी भी इनकी इंडिविजुअलिटी बरकरार रहती है। जैसे आप ऐसा करें कि इन सलाद को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके, आलू को उबाल करके उसमें एक चोखा, आप लोग जानते होंगे, तो एक स्ट्यू की तरह से, एक चोखा की तरह से उनको बना दिया। अभी भी सारे इंग्रेडिएंट्स दिखाई देंगे, लेकिन कॉमन गोल है कि एक टेस्टी आपको चोखा मिल गया। ये इंटरडिसिप्लिनरी है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सोशल साइंसेस कमिंग टुगेदर फॉर कम्युनिटी डेवलप इन एन एरिया, वर्किंग टुगेदर, एक बिल्कुल ही सिंक्रोनाइजेशन में काम कर रहे हैं, ताकि एक गोल उस कम्युनिटी को डेवलप कर सके। दिस इज इंटरडिसिप्लिनरी, कि एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट ज्यादा कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हमारी आपस में हमारा जो डिसिप्लिन है अलग अलग है। और ट्रांसडिसिप्लिनरी क्या होता है? अब इस सब को लेकर के एक मिक्सी में डाल दीजिए और मिक्सी को चला दीजिए अच्छे से, और उसका केक बना दीजिए। अब केक में कोई डिसिप्लिन नहीं दिखाई देगा, ना आपको परवल दिखाई देगा, ना भिंडी दिखाई देगी, ना आपको आलू दिखाई देगा, ना कोई पत्ता दिखाई देगा, सभी मिलकर के एक कॉमन प्रोडक्ट लेकर के आए। तो जब कभी भी कोई रिसर्च में जाते हैं, कभी किसी डेवलपमेंट में जाते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एक कम्युनिटी को डेवलप करना है, तो एक नया कोर्स कुरिकुलम आप शुरू करिए, जिसमें वैसे स्टूडेंट्स को लीजिए जिनमें इन सारे एरियाज का उनको ट्रेनिंग दीजिए, तो वो कहलाएगा ट्रांसडिसिप्लिनरी। रिसर्च भी ट्रांसडिसिप्लिनरी, भाई नैनो टेक्नोलॉजी जैसे कैसे हो गए, ट्रांसडिसिप्लिनरी की तरह है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, सभी एक साथ काम करके नए नए रिसर्च प्रोडक्ट्स निकाल रहे हैं। दिस इज ट्रांसडिसिप्लिनरी। तो हमारा जो एनईपी 2020 कहता है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, जब कहता है तो गौर करिएगा, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर तो आप मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ना समझिए, लेकिन द मोमेंट यू गो इनटू द रिसर्च पार्ट, इसका मतलब आप इंटरडिसिप्लिनरी एंड ट्रांसडिसिप्लिनरी एरिया में आ गए। सो एनईपी में मल्टी डिसिप्लिनरी का लिखा तो वर्ड है मल्टी डिसिप्लिनरी, लेकिन आप उसको मल्टी डिसिप्लिनरी, interdisciplinary and transdisciplinary all taken together समझिए। And multidisciplinary education is indispensable to holistic education and development of well-rounded individuals and global citizens. So, holistic individual में क्या क्या होने चाहिए? Very simple, intellectually sound। और ये देखिए, ये हम प्रोड्यूस करने की बात कर रहे हैं अपने कोर्स कुरिकुलम से, एनईपी को हम अप्लाई करके। इंटेलेक्चुअली साउंड, इमोशनली अटैच्ड टू सोसाइटी एंड नेशन, culturally connected to the root, physically strong, socially connected and developed aesthetic sense। ये चीजें हमको आज के स्टूडेंट्स में इम्बाइब करनी है। हम लोग अनफॉर्चुनेट थे, अपने समय में ऐसी चीज नहीं पा पाए, लेकिन हमें आगे वाले जनरेशन को देना है ये, और उनको होलिस्टिक इंडिविजुअल बनाना है। NEP 2020 mandates that outcome of education should not be just individual employment. It should be the basis for knowledge creation and innovation, thereby contributing to growing। गौर करिएगा, NEP 2020 एक और बात कहता है, वो बात ये कहता है कि भाई आप जो उनको नॉलेज दे रहे हैं, देखिए आज की दुनिया में देयर इज फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन। आप नेट पर एक वर्ड का कीवर्ड डालिए, एक सेंटेंस डालिए, और एक दो नहीं, हजार नहीं, मिलियंस ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दैट आ जाता है। तो जब इतना इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है, तो सवाल यह है कि हमारे एजुकेशन की जरूरत क्या है, स्टूडेंट्स को, उनको क्लासरूम तक आने की जरूरत क्या है। तो यहीं पर हम टीचर्स का इंपॉर्टेंस समझ में आएगा कि हम उनको नॉलेज जो दे रहे हैं
which knowledge should not be the end in itself. हमको नॉलेज उनको देना है एज ए टूल टू क्रिएट फर्दर नॉलेज. हम उनको मैथमेटिक्स सिखाएं तो मैथमेटिक्स ऐसा सिखाएं उस मैथमेटिक्स को यूज करके वो फर्दर और क्रिएट कर पाए नॉलेज. सो नॉलेज एज ए टूल टू क्रिएट मोर नॉलेज शुड बी द एम. यानी हम क्लास में उनको जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश सिर्फ नॉलेज है वो नॉलेज नहीं बताएं. नॉलेज कैसे आया, किस तरह से लगा, क्या टूल्स किए गए, कैसे फर्दर नॉलेज क्रिएट हो सकता है, हमें स्टूडेंट्स को ये ट्रेनिंग देनी है एनईपी 2020 में. हायर एजुकेशन क्या करना चाहिए? इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, मीनिंगफुल एंड सेटिस्फाइड लाइफ, कंस्ट्रक्टिव पब्लिक एंगेजमेंट, प्रोडक्टिव कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी एंड पर्सनल अकॉम्प्लिशमेंट एंड एनलाइटनमेंट. ये चाहिए ना. पहले क्या डेफिशिएंसीज थी जो अब एनईपी 2020 में इंप्रूवमेंट हो गया है? एक दो बातें बताएं. पहले था लेस एम्फेसिस ऑन डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव स्किल्स एंड लर्निंग आउटकम्स. अब हमारे में रिवैम्पिंग कुरिकुलम पेडागोगी, assessment, student support, lesser emphasis on research at most universities and colleges. आप जानते हैं most of the affiliated colleges में research के नाम पर बहुत कम कुछ होता है. National Research Foundation बन रहा है to fund outstanding peer reviewed research. Inadequate mechanism for merit based. Rigid separation. पहले क्या था, हम लोगों ने जो पढ़ा, मैं अगर फिजिक्स पढ़ रहा हूं तो मुझे बाकी चीजों से कोई मतलब नहीं है. आप अगर पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो आपको बाकी चीजों से कोई मतलब नहीं है. कोई अगर म्यूजिक में चला गया तो उसको तो बाकी सब्जेक्ट नेचुरल साइंस से मतलब ही नहीं है. माइंड इट, मल्टी डिसिप्लिनरी अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन. जहां एक बात आपको और बता दें, उसमें जितने क्रेडिट्स, जितना वेटेज आपके फिजिक्स का होगा, जितना पॉलिटिकल साइंस का होगा, जितना आपके हिस्ट्री का होगा, उतना ही को करिकुलर, उतने ही क्रेडिट, उतना ही वोकेशनल कोर्सेज के भी होंगे. और ये सारे के सारे सब्जेक्ट क्रेडिट कैलकुलेशन के समय में दे विल बी कंसीडर्ड at par. यानी ये सारे के सारे सब्जेक्ट अब सेम प्लेटफॉर्म पर ला दिए गए हैं और मल्टी डिसिप्लिनरी में अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज विल हैव टू बी टॉट. अगर कोई कॉलेज आज साइंस का कॉलेज है तो आने वाले 2030 के बाद में वो साइंस नहीं रहेगा, उसको मल्टी डिसिप्लिनरी बनना है. जैसे हम बताएंगे स्ट्रीम में, इस क्लस्टरिंग ऑफ कॉलेजेस कर करके मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन लाया जाएगा. अगर कोई सिर्फ आर्ट्स का है, आर्ट्स का रह जाएगा, उसको इंटीग्रेट किया जाएगा, क्लस्टर में लाया जाएगा, जहां पर कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सब रहेगा, सोशल साइंसेज भी रहेंगे, सोशल वर्क भी रहेगा, सोशियोलॉजी भी रहेगा. ऐसे कॉलेजेस जब बनाए जाएंगे, मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेजेस एंड मल्टी डिसिप्लिनरी आपको एजुकेशन होगा. एंड हर डिस्ट्रिक्ट में क्लस्टरिंग ऑफ कॉलेजेस. और जो ये वर्ड आप सुन रहे हैं, affiliated college deemed to be university, by 2035 they are all going to be closed. Not shocking, it is going to happen. So anyway, how to end fragmentation of higher education? उसी का जो है, by transforming higher education institutions into large multidisciplinary universities, colleges and higher education clusters and knowledge hubs. सभी को ट्रांसफॉर्म होना. टाइम से लेकर करीब 15 से 20 साल का है. By 2030, all higher education institutions will become multidisciplinary, one large multidisciplinary college in every district. Music, art and literature to be taught in colleges. अगर IIT भी है, उसको भी म्यूजिक, आर्ट एंड लिटरेचर लाना है. And vice versa. No rigid separation between arts and science, co-curricular, vocational and academic. कोई भी इसके बीच rigid separation नहीं रहेगा. जैसे ऑनरेबल वाइस चांसलर ने भी कहा, तो मैं इसको बताऊं, एंशिएंट इंडियन एजुकेशन, ठीक है ना, वो हमारा मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच था. तो कादम्बरी तो 64 क्लास बात कर रहे हैं. मैथमेटिक्स, vocational, carpentry, cloth making, professional fields, medicine and engineering, as well as soft skills such as communication, discussion and debate. गौर करिए, जैसे मैंने कहा था, सर ने भी याद दिलाया कि भाई एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर तो बन गया, लेकिन अपने घर का एक वायर को ठीक है, एक छोटा सा इलेक्ट्रिकल फॉल्ट आ गया तो बिजली मिस्त्री जब तक नहीं आएगा तब तक हम अंधेरे में रहेंगे, या हमारा एसी नहीं चलेगा, या हमारा पंखा तक नहीं चल पाएगा. तो ऐसा एजुकेशन पहले था.
अब क्या कहा जा रहा है कि आपको इन सारे नॉलेज के साथ आपको वोकेशनल भी कोर्स पढ़ना है, आपको को करिकुलर भी सीखना है, कारपेंट्री, क्लोथ मेकिंग, ये सब वोकेशनल कोर्सेज में भी आपको सिखाए जाएंगे। तो मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री के साथ कारपेंट्री एंड क्लोथ मेकिंग सीखना है, मेडिसिन एंड इंजीनियरिंग भी आपको सीखना है, साथ में डिस्कशन एंड डिबेट भी, सॉफ्ट कम्युनिकेशन स्किल्स भी आपको सीखने हैं। अब एक आपको इंपॉर्टेंट बात देखिए, मैं आपको बताता हूं, जो हम बाहर को कहते हैं अरे वहां पर हमारे बच्चे वहां लिबरल आर्ट सीख रहे हैं। द वेरी आइडिया that all branches of creative human endeavor, including mathematics, science, vocational subjects, professional subjects, and soft skills should be considered arts. ये सारे के सारे हमारे यहाँ पहले से ही आर्ट समझे जाते थे, आज इनको वेस्टर्न कंट्रीज में आर्ट समझा जाता है। एंड नोशन क्या, अ नॉलेज ऑफ मेनी आर्ट्स, और इन मॉडर्न टाइम्स व्हाट वी कॉल इज लिबरल आर्ट्स, इसी को कहते हैं। तो ये सारी चीजें आर्ट्स कहलाती हैं, और लिबरल आर्ट्स उसी से निकलता है, और ये लिबरल आर्ट इंडिया में ही था, और यही लिबरल आर्ट एनईपी 2020 बात करता है हमारे वापस देश में लागू करने के लिए। और अब आगे यूनिवर्सिटी हम किसको कहेंगे, एंड व्हाट विल हैपन टू द सो कॉल्ड डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, एफिलिएटिंग टेक्निकल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी यूनिटरी यूनिवर्सिटी, माइंड इट, दे शैल बी रिप्लेस्ड सिंपली बाय यूनिवर्सिटी on fulfilling the criteria as per norms. The overall higher education sector will aim to be an integrated higher education system, जो fragmented अभी तक था वो नहीं रहेगा, including professional and vocational education. This policy and its approach will be equally applicable to all HEIs across all current streams, which would eventually merge into one coherent ecosystem of higher education. I would request डॉक्टर नेमा की जब टाइम थोड़ा होने लगे तो मुझे पहले आइडिया दे दीजिएगा, क्योंकि हमारा तो काफी लंबा चलेगा अदरवाइज। आई रिक्वेस्ट डॉक्टर नेमा कि बीच में प्रॉम्प्ट अवश्य कर दीजिए। राइट जी जरूर सर, अभी टाइम है सर, बहुत टाइम है जी। ओके, थैंक यू। The undergraduate education that integrate the humanities and arts with science, technology, engineering, mathematics show positive learning outcomes. क्या है भाई? Enjoyment of learning, improved teamwork and problem solving ability. Yes, जब हम multidisciplinary education लेते हैं तो इसके फायदे हैं, improved communication skills, increase in social and moral awareness, critical thinking and improved research, mastery of curricula across fields and more in-depth learning. Even engineering institutions such as IITs, NIITs, IITs, regional engineering institutions will move towards more holistic and multidisciplinary education with more arts and humanities. आज ही मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, आज ही मैं एक न्यूज पढ़ रहा था कि IIT मुंबई ने बीटेक में अगर कोई 3 साल के बाद एग्जिट करता है तो उसको BSc डिग्री इन इंजीनियरिंग देना उन लोगों ने शुरू किया है। आज ही न्यूज आया है कि IIT बॉम्बे विल बी गिविंग BSc engineering to those candidates, to those students who do not want to or who are not able to complete all 4 years of their BTechs. They will be given degree of BSc engineering. तो एंट्री एग्जिट भी है हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, जो थोड़ी देर बाद मैं आऊंगा। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन आपको बताया जाएगा, एनवायरमेंट एजुकेशन, फ्लेक्सिबल एंड इनोवेटिव कुरिकुलम, राइट? सो a part of holistic education, as part of holistic education, all students at all HEIs will be provided with opportunities for internship with local industry. अब ये मैं internship बता दूं, जब आप NEP देखेंगे उसमें internship देखेंगे लिखा हुआ, आप घबराएंगे बहुत सारे लोग, अरे हम कैसे करा पाएंगे ना। ये internship जिसको कहते हैं, जिसको vocational education पेपर कहते हैं, गौर करिएगा। आप अगर किसी रिमोट एरिया में रहते हैं, वहां आपका कॉलेज है, वहां पर खेती बहुत ज्यादा कुछ खास चीज की होती है, तो वोकेशनल एजुकेशन का मतलब है एक आप सिलेबस उसके ऊपर में डेवलप करके स्टूडेंट्स को उसके बारे में ट्रेनिंग दें और वहां के कोर्स को आप यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ स्टडीज से पास कराएं। आपको यूनिवर्सिटी से ही, जो कि शहर ओरिएंटेड है, जो कि अर्बन ओरिएंटेड पेपर्स हैं, वही आपको रिमोट एरियाज में भी नहीं पढ़ाना है। वहां का लोकल स्किल जो है, लोकल एक्सपर्टीज जो है, आर्टिजन है, क्राफ्ट है, वहां का क्लोथ मेकिंग है, वहां का जंगल से कुछ आर्टिस्ट्री बनाना है, ये सब वोकेशनल ट्रेनिंग में आपके आएगा। तो इन सभी चीजों को भी कोर्स करिकुलम का आपको पार्ट बनाना है। अर्बन अपने अर्बन एरियाज के अनुसार बनाएंगे,
रूरल अपने रूरल के अनुसार बनाएंगे, फॉरेस्ट के पास ड्वेल करने वाले वहां के अनुसार बनाएंगे। तो इंटर्नशिप का मतलब है कि बड़ी फैक्ट्रीज में भी आप काम करके आप इंटर्नशिप ले सकते हैं, आप किसी बिजनेस हाउस में जाके इंटर्नशिप काम कर सकते, किसी सीए के साथ में जाके काम कर सकते हैं, और एक विलेज में रहते हुए वहां के आर्टिजन, वहां के काम को सीख कर भी आप इंटर्नशिप, आप वहां पर पॉट मेकिंग बनाना, पॉटरी आप सीख सकते हैं, दैट इज इंटर्नशिप। तो इंटर्नशिप से आपको घबराना नहीं कि इंटर्नशिप हम कैसे कराएंगे तो शहरों में होता है, नहीं, ये कॉलेज ओरिएंटेड, ये एरिया ओरिएंटेड चीजें हैं। दिस इज प्रैक्टिकल साइड ऑफ लर्निंग, और ये उनके एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाएगा बाद में, क्योंकि जब वो थियोरेटिकल नॉलेज लेकर के जाएंगे, साथ में कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज भी आएगा, तो न सिर्फ अपनी लाइफ को अच्छा करेंगे बल्कि वो अपनी कंपनी को भी कंट्रीब्यूट करेंगे। अभी ऑनरेबल वाइस चांसलर ने स्टीव जॉब्स का एग्जांपल दिया, क्या पढ़ाई की थी उसने और क्या बन गया वो, और क्या डेवलप दुनिया के लिए कर दिया। तो ये जब आप सारी चीजों का एक होलिस्टिक अप्रोच के रूप में इंटीग्रेटेड एजुकेशन देते हैं, तो आप स्टूडेंट के थिंकिंग होराइजन को बहुत वाइड कर देते हैं। तो और वो अपने अनुसार, अपनी कैपेसिटी के अनुसार बहुत सारी चीजों को इंटीग्रेट करके बिल्कुल ही एक नया प्रोडक्ट निकाल लेता है, जो एक सिर्फ फिजिक्स पढ़ने वाला नहीं निकाल पाएगा, जो केमिस्ट्री पढ़ने वाला नहीं निकाल पाएगा, जो हिस्ट्री जानने वाला नहीं निकाल पाएगा, वो निकाल लेगा। क्यों? क्योंकि उसको हर चीज के बारे में आइडिया है। सो knowledge consists of two elements, education where you get knowledge and research where you create knowledge। तो अभी जैसे आप कर रहे हैं प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल में, कॉलेज में बीएससी, बीए, बीकॉम, यूनिवर्सिटी में एमएससी, एमए, एमकॉम, ये सब कहा जाता है कि यहाँ नॉलेज हम देते हैं। नहीं, इस नोशन को बदलने की जरूरत है। आपके मास्टर्स और अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन में भी आपके रिसर्च का कुछ पार्ट उसमें इंक्लूड करिए, ताकि उनको स्टेट ऑफ द आर्ट के बारे में आज पता चले और आज ही उनका इंटरेस्ट डेवलप हो कि हम किस एरियाज में जा सकते हैं, ताकि हायर एजुकेशन में जाने पर उनका थिंकिंग होराइजन ओपन हो और वो एक कंसीडर्ड चॉइस कर पाए। कंसीडर्ड चॉइस अभी क्या है, अरे भाई हमने 12 पास कर, क्या कर, अच्छा बीएससी करो, अच्छा कर लो बीए कर लो, क्या चीज में बीए करो नहीं मालूम, कौन सा सब्जेक्ट ले लो नहीं मालूम, एमएससी में, अरे एमएससी कर लो यार, क्या कर लो, अच्छा फिजिक्स मिल रहा है कर लो, नहीं मैथमेटिक्स मिल रहा है कर लो। नहीं, प्लीज डोंट डू दैट। आप उनको उसी, गौर करिएगा, जब आप बीएससी का सिलेबस देखेंगे, बीए, बीएससी, बीकॉम का आप देखेंगे, उसी में इंटर्नशिप है, उसी में रिसर्च मेथोडोलॉजी उनको सिखाना है। क्या मतलब है इसका कि जो एजुकेशन जहां आप दे रहे थे और रिसर्च में बाद में पीएचडी में क्रिएशन ऑफ नॉलेज आप बता रहे थे, इस क्रिएशन ऑफ नॉलेज इन पीएचडी, उसका बीज आपको अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट में ही डालना है। जब आप वहां डालेंगे तो जब वो आएंगे फाइनल रिसर्च के लिए, तो उनके अंदर में वो बीज अच्छे से पनप चुका होगा और वो बहुत अच्छा रिसर्च कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा, और नॉलेज क्रिएट कर पाएंगे। Curriculum from schools to master's level should be designed to have in learners क्या, intellectual curiosity, scientific temper, creativity, that is they should be given learning as a tool। मैंने जैसे बताया, learning as a tool, not the final knowledge। नॉलेज आप दे रहे हैं उसको टूल की तरह इस्तेमाल करके फर्दर कर पाए। एंड एक सेंटेंस में कहूंगा, इंस्ट्रक्शंस इन द क्लासरूम शुड बी ट्रिगरिंग पॉइंट्स फॉर फर्दर लर्निंग। ट्रिगरिंग पॉइंट्स, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। देखिए भाई, बहुत से लोग कैसे अलग अलग पढ़ाते हैं, मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, इंडिविजुअल। एनईपी 2020 हम सभी शिक्षकों से ये अपेक्षा करता है कि इंस्ट्रक्शंस इन क्लासरूम शुड बी ट्रिगरिंग पॉइंट्स फॉर फर्दर लर्निंग। आप उसमें क्यूरियोसिटी जगाइए, साइंटिफिक टेम्पर जगाइए, इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी जगाइए, क्रिएटिविटी जगाइए, ताकि आगे जाकर के बहुत कुछ वो कर पाए। एजुकेशन पॉलिसी क्या क्या चाहिए इसके बारे में नहीं जाऊंगा मैं, इसमें बहुत लोग ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे, तो ये एक चार्ट में डिस्कस करना चाहूंगा। अभी जो 4 ईयर आया, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट क्लास जो आया है, उसमें अगर कोई करता है 1 साल का कोर्स और उसके बाद देखिए इसमें एंट्री एग्जिट है, मल्टीपल एंट्री एग्जिट। हम 1 साल के बाद में लौट करके ज्वाइन कर लें, आपको ऑप्शन है। 2 साल का करके आप निकल लें, आप वापस आके ज्वाइन कर लें, आपको ऑप्शन है। अगर आप 1 साल के बाद निकलते हैं तो आपको उस सब्जेक्ट में एक सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल के बाद आपको एक डिप्लोमा मिलेगा, अगर 3 साल तक ग्रेजुएशन कंटिन्यू करते हैं तो आपको एक डिग्री मिलेगी। 3 साल के बाद आपके पास क्या ऑप्शन है, गौर करिए। 3 साल के बाद आपके पास में ऑप्शन है, एक है 4 ईयर मल्टी डिसिप्लिनरी डिग्री, यानी
चौथे साल में आप वेरियस पेपर्स पढ़ाएंगे उस सब्जेक्ट के अलावा जिसमें एक्सपर्टीज वो ले रहा है, और आप उसको 4 ईयर मल्टी डिसिप्लिनरी डिग्री देंगे। या एक और ऑप्शन क्या है जिसमें कि यूजीसी ने कहा है कि एक सर्टेन लिमिटेड परसेंटेज 75% से ऊपर होगा तो उनको डिग्री विथ रिसर्च दी जाएगी, यानी चौथे साल में वो डिग्री विथ रिसर्च करेंगे। यानी 3 साल के बाद 2 ऑप्शन है, 4 ईयर मल्टी डिसिप्लिनरी डिग्री और दूसरा है 4 ईयर डिग्री विथ रिसर्च। बट माइंड इट देयर इज वन डिफरेंस आफ्टर दैट। अगर आपने 4 ईयर डिग्री विथ रिसर्च किया है तो यू कैन हैव अ डायरेक्ट एंट्री टू द पीएचडी। आपका एक साल 4 साल में आपने ग्रेजुएशन कर लिया और 5वें साल में आप पीएचडी में चले गए। लेकिन अगर आप 4 ईयर मल्टी डिसिप्लिनरी डिग्री करते हैं तो आपको 2 साल का मास्टर्स डिग्री करना होगा, और 2 साल के मास्टर डिग्री के बाद आप पीएचडी में जाएंगे। यानी 4 ईयर मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब है 6 years यू हैव टू स्पेंड बिफोर एंटरिंग इनटू द पीएचडी, और 4 ईयर डिग्री विथ रिसर्च का मतलब है इट इज आफ्टर 5 years ओनली दैट यू कैन गो। एक में 6 years है और एक में आपको 5 ईयर के बाद, और 4 ईयर डिग्री विथ रिसर्च के बाद आपके पास जो अगर मास्टर्स का ऑप्शन है तो सिर्फ 1 साल का मास्टर आपको करना है। और सबका एक और भी है, 5 ईयर इंटीग्रेटेड बैचलर ऑफ मास्टर प्रोग्राम भी कर सकते हैं आप, यानी 4 साल की डिग्री के साथ 1 साल का रिसर्च का इंटीग्रेट करके आप 5 ईयर इंटीग्रेटेड बैचलर और मास्टर प्रोग्राम कर सकते हैं। माइंड इट, इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको लेना है ये कॉलेज की अपनी कैपेसिटी, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी स्ट्रेंथ पर डिपेंड करेगा। गौर करिएगा, आप चाहते हैं कि 4 ईयर हम मल्टी डिसिप्लिनरी डिग्री, क्योंकि कॉलेजेस में आप देखेंगे कि बहुत जगहों पर अभी रिसर्च के लिए फैसिलिटीज नहीं होगी, तो डिग्री विथ रिसर्च में जाना आपके लिए डिफिकल्ट होगा। तो आप 4 ईयर मल्टी डिसिप्लिनरी डिग्री ले सकते हैं कि 4 साल हम उनको पढ़ाएंगे ही भाई, ये आपके पास है ऑप्शन। यूनिवर्सिटीज में या बहुत अच्छे कॉलेजेस इस तरह के हों जिनके पास में रिसर्च की अच्छी फैसिलिटीज है, तो वो अपने स्टूडेंट्स को प्रमोट करें कि वो गो फॉर डिग्री विथ रिसर्च, एक सर्टेन परसेंटेज से उनका ऊपर हो तो एग्जाम में 3 साल के बाद आप उनको उनमें ले लीजिए। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कॉलेजेस ऑल्सो। और एक बात और गौर करिए, जब आप सिलेबस या कुरिकुलम डेवलप करते हैं तो आप 1 साल का सर्टिफिकेट अगर उसको कोर्स देते हैं तो कोर्स की डिजाइन ऐसी होनी चाहिए कि 1 साल के बाद वो किसी लायक रहे कि कुछ काम कर पाए, अगर और कुछ ना करे तो, पढ़ाई आगे ना कर पाए तो। डिप्लोमा आप देते हैं तो कोर्स का डिजाइन, आपका कुरिकुलम ऐसा होना चाहिए कि 2 साल के बाद कुछ चीजों में तो कम से कम एक्सपर्ट बना दें उसे, कि बाहर जाए तो कुछ काम अपने लिए कर पाए। ये पर्पस है एनईपी का, कि 1 साल के बाद आप छोड़ सकते हो, 2 के बाद, 3 के बाद, 4 के बाद। आप 2 साल के बाद छोड़ करके आप तीसरे साल में 2 साल के बाद भी लौट सकते हो। लेकिन हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी को अपनी पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि हम कितने साल के बाद में एंट्री, हम एग्जाम मैक्सिमम कितने साल के बाद हम एंट्री अलाउ करेंगे, या कितनी बार एंट्री और एग्जिट हम अलाउ करेंगे एक कैंडिडेट को। क्यों कि हर चीज आपके लिए पॉसिबल नहीं है, ये पॉलिसी है। एक्चुअल आपका कंडीशन क्या है उसके अनुसार आपको इंप्लीमेंट करना है। तो ये इसका प्लान है। अब इसके प्लान में आप देखिएगा, नॉट टेकिंग मच टाइम, मैं इसमें ज्यादा चीजों पर तो नहीं आऊंगा, इसमें ये सब मुझे स्किप करना पड़ेगा। और मैं एक दूसरी चीज पर आपके पास आना चाहता हूं बिफोर आई एंड अप, क्योंकि आपके लिए वो ज्यादा जरूरी होगा, क्योंकि फियर साइकोसिस होती है माइंड में कि नई चीजें तो क्या है ये। जैसे एक प्रपोज्ड ईयर वाइज स्ट्रक्चर है यूजी पीजी प्रोग्राम का, ठीक है, 2020 का है ये। इसमें क्या है कि जैसे आपने लिया ये स्ट्रक्चर, देखिए जैसे ये ईयर है फर्स्ट ईयर, ये सेमेस्टर है 1 और 2। जैसे इसमें क्या करना है उनको, एक स्टूडेंट जब एडमिशन लेता है तो फर्स्ट सेमेस्टर में उसको 3 मेजर सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, एक माइनर सब्जेक्ट जिसको इलेक्टिव कहते हैं वो पढ़ना होता है। और ये है मेजर सब्जेक्ट में एक थियरी या तो 6 क्रेडिट की होगी, या थियरी 4 क्रेडिट की और एक प्रैक्टिकल 2 क्रेडिट का होगा। अगर कोई आर्ट्स का सब्जेक्ट है तो पूरी तरह से थियरी होगा, साइंस का सब्जेक्ट है तो प्रैक्टिकल और इसका दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। तो एक अपने फैकल्टी में, दूसरा अपने फैकल्टी में, एक दूसरे फैकल्टी में एक मेजर लेना है, यानी उसको 3 मेजर लेना है। इसके अलावा यहां देखिए माइनर एक, जैसे मैं एक एग्जांपल अपना देता हूं, एक स्टूडेंट ने फिजिक्स और केमिस्ट्री मेजर सब्जेक्ट पढ़ा, तो और उसने मैथमेटिक्स को माइनर सब्जेक्ट ले लिया, तो उसको एक पेपर उसको माइनर का यहां पढ़ना है। 3 मेजर एंड 1 माइनर। इसके साथ इसके साथ उसको यहां देखिए एक वोकेशनल कोर्स करना है जो 3 क्रेडिट का होगा। ये फ्लेक्सिबल है, आप चाहें तो 2 क्रेडिट का वोकेशनल कर सकते हैं, 3 का कर सकते हैं। एक उसको माइनर लेना है को करिकुलर का भी, गेम्स, डिबेटिंग, कल्चरल एक्टिविटी, ये को करिकुलर हो गया। तो एक वोकेशनल, एक को करिकुलर, आप चाहे 2-2 क्रेडिट लें, 3-2 ले लें, कुछ भी ले लें, और एक इंट्रा डिपार्टमेंटल फैकल्टी रिलेटेड
एक कोई सब्जेक्ट आपको लेना है। अब आपको देखिए इसमें क्या है कि कुल मिलाकर के आपको फ्लेक्सिबिलिटी है कि 23 से लेकर के 29 क्रेडिट के बीच में आप अपना कुरिकुलम डेवलप कर सकते हैं। सिमिलरली सेकंड में भी आप देखेंगे बिल्कुल वही स्ट्रक्चर है, थर्ड में भी वही स्ट्रक्चर है, फोर्थ में वही स्ट्रक्चर है। गौर करिएगा यहां भी आप देखेंगे आपका ये चल रहा माइनर मेजर में वोकेशनल एंड को कुरिकुलर चलेगा। मैंने वोकेशनल भी बता दिया क्या क्या आपके यहाँ के हो सकते हैं, को कुरिकुलर भी बता दिया क्या क्या हो सकते हैं। जब वो जाएगा थर्ड ईयर में, फिफ्थ सेमेस्टर में, उसका माइनर खत्म हो जाएगा, मेजर रह जाएगा। और मेजर भी अब आप गौर करिएगा 3 से घट करके 2 हो गए, 3 से घट करके 2 हो गए, बाकी स्ट्रक्चर यहां दिया हुआ है। फिर इसके बाद जब ये दोनों कर लेगा, तीसरा ये साल कर लेगा, तो 2 मेजर की जगह, जैसे फिजिक्स मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स था, मैथमेटिक्स माइनर था, उसने थर्ड ईयर में आके मैथमेटिक्स छोड़ दिया, फिजिक्स केमिस्ट्री लेकर के आगे बढ़ गया। चौथे साल में उसने ये तीसरे साल में 2 लेके किया, चौथे साल में अब उसको एक चॉइस करना है, या तो फिजिक्स पढ़ो बेटा या फिर आप केमिस्ट्री पढ़ो। तो यहां एक सब्जेक्ट लेगा, और जब एक सब्जेक्ट जैसे ही वो लेगा, गौर करिएगा यहां आप देखिएगा कि उसके पेपर में आएंगे ना, वो पेपर में उसका इंटर्नशिप आना शुरू हो जाएगा, उसके पेपर में रिसर्च मेथोडोलॉजी आनी शुरू हो जाएगी, यानी अब उसको धीरे धीरे उस सब्जेक्ट में रिसर्च की तरफ ओरिएंट करना शुरू कर दिया जाएगा। सो ये उसने एक सब्जेक्ट में मेजर चूज, ठीक है। फिर उसके बाद तो पीजी आ गया, तो इस 5 ईयर इंटीग्रेटेड में आप ले लीजिए पेपर। तो कहने का मतलब है कि ये एक स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल है, और फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर का मतलब है आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने स्ट्रेंथ, अपने नंबर ऑफ फैकल्टी मेंबर्स, आपके यहाँ क्या क्या चीजें हैं सराउंडिंग्स में, किस तरह के एनवायरमेंट में आप रहते हैं, क्या आपके यहाँ की कौन कौन सी चीज अच्छी है, स्टूडेंट्स आपके यहाँ जो आ रहे हैं वो किस तरह के हैं, इन सभी चीजों को मिला करके आप अपना एक डेवलप कर सकते हैं, गाइडेड बाय ऑफ कोर्स द यूनिवर्सिटी जो कि आपको देख रही है। तो इन सबों को मिला करके जब आप डेवलप करेंगे तो एनईपी 2020 के अनुसार आप आगे बढ़ जाएंगे। एंड माइंड इट, ये फियर शुरू में रहता है कि अरे ये कैसा है, कैसे होगा, कैसे इंप्लीमेंट होगा। एक बार आप इस पर आगे बढ़ जाते हैं, उसके बाद में वो खत्म हो जाता है कि क्या होगा, आप देखेंगे चीजें स्मूथ चलेंगी। लेकिन बिफोर यू इम्प्लीमेंट इट, you understand it and understand it comprehensively, उसके बाद में आप इसको बड़े अच्छे से लागू कर पाएंगे। लागू करने के बाद आप सोचे कि हम जल्दी से लागू कर दिया और उसके बाद बीच में आप बहुत सारे चेंजेस कर रहे हैं, that will create some kind of confusion, आपके स्टेक होल्डर्स आपसे नाराज होंगे, आपका प्लान फेलियर के तक चला जाएगा। सो मेरा आपको सजेशन ये है कि जब आप एनईपी 2020 इम्प्लीमेंट करें तो आप बड़े सोच समझ के प्लान करके एक्सपर्ट से कंसल्ट करके उनसे बार बार समझ करके तब आप इम्प्लीमेंट करें तो अच्छा रहेगा। सो आई थिंक इतना मेरे लिए आज के लिए मैं समझता हूं कि ओके है टू अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफ व्हाट एनईपी 2020 इज, कि भाई ये उसका सोल है, ये उसकी आत्मा है, ये उसका बैकग्राउंड है। हम क्यों एनईपी 2020 की तरफ जा रहे हैं? क्योंकि हमारे ये डेवलपमेंट गोल्स हैं, हमारे दुनिया से ये चैलेंजेस है, हमें होलिस्टिक इंडिविजुअल चाहिए, हमें ऐसे इंडिविजुअल चाहिए जो वर्ल्ड लेवल पर कंपीट कर पाए, जो अच्छे सिटीजन्स हो, जो सोशली कनेक्टेड हो, जो आप कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को मानते हो, जो मानवता से जुड़े हुए, अपने देश की मिट्टी से जुड़े हुए हों और अपने सांस्कृतिक विरासत के प्रति गौरव महसूस करते हो। ऐसे हमें प्रोड्यूस करना है। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज टीचर विद एनईपी 2020 कई गुना मल्टीप्लाई कर गई है। इसमें ऑटोनॉमी ज्यादा देने की बात की गई है हमें, लेकिन ऑटोनॉमी जब आती है तो जिम्मेदारी भी उतनी ही बात आ जाती है। सो आई एंड माय sharing of knowledge with you with these words. Thank you very much. If you have any question, I am ready to answer. Thank you, sir. अगर ये लैबोरेटिव वे में सर आपने पूरी एनईपी के बारे में हम सब लोगों को आज अपने व्याख्यान में बताया, सिंस बिगिनिंग से लेकर के एंड तक, व्हाट शुड बी द स्ट्रक्चर of new education policies regarding syllabus and curriculum development activities, and what is the concept and the aim of this new education policy, उसके बारे में आपने बताया सर। holistic development, holistic individuals development के बारे में बताया, जो फोकस था आपका जो। तो मैं आपको सर थैंक्स एक्सटेंड करता हूँ, एंड मैं जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे
अनुरोध करता हूं कि अगर कोई क्वेरीज हैं आपकी, यदि कोई क्वेश्चंस हैं आपके मन में, तो हमारे आज के बीच में उपस्थित विशेष तौर पे एनईपी पे स्पेशलिस्ट हैं सर, आप पूछ सकते हैं। अगर कोई क्यूरिकुलम से संबंधित है या कोई आपका कॉन्सेप्ट है इंटरडिसिप्लिनरी से रिलेटेड है या होलिस्टिक डेवलपमेंट से रिलेटेड, अगर कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज हैं, तो प्लीज या तो चैट बॉक्स में आप लिख दें, मैं पूछ लूंगा, या आप डायरेक्टली पूछना चाहते हैं तो आप अनम्यूट होकर के पूछ सकते हैं। चैट बॉक्स में अगर नहीं है तो मैं चैट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं आपकी तरफ से क्वेश्चंस को रेज कर लूंगा। सर नमस्कार सर। हाँ, आपका इंट्रोड्यूस कर दीजिए, सर नाम बताना नमस्कार, सर। दिस इज डॉक्टर आकाश वसनेकर सर। Okay, okay, sir. Please Sir, go my ahead. question is regarding vocational training program, that is internship. If just imagine, sir, some of the students who belongs to commerce background and want to do internship in the field of agriculture, does this NEP new intern? भाई देखिए, एनईपी की यही तो ब्यूटी है, वो कहाँ मना कर रहा है आपको। आप एक बात बताइए, जो कॉमर्स पढ़ने वाला स्टूडेंट है वो क्या कॉमर्स में एग्रीकल्चर के बारे में सब कुछ नहीं पढ़ता है, उसकी इकोनॉमी नहीं पढ़ता है? सो इट इज फॉर द कंसर्न्ड फैकल्टी मेंबर टू कोरिलेट व्हाट द स्टूडेंट वांट्स टू डू इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर टू व्हाट कॉमर्स इज ऑल अबाउट। एग्रीकल्चर भी तो आज कॉमर्स ही है। एग्रीकल्चर का कौन सा कमोडिटीज है जो आज स्टॉक मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज पर नहीं सेल हो रहा है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में, स्टॉक मार्केट में? तो एग्रीकल्चर तो ऑलरेडी कॉमर्स का पार्ट है, व्हाई नॉट टू ऑफर दैट? इट शुड बी, यस। But I was talking about, the proper. आपकी आवाज, आप ऐसा कर सकते हैं, आप वीडियो अपना ऑफ करके तब आप क्वेश्चन करिए, तो शायद आपका जो बैंडविड्थ है वो आपको हेल्प करे। सर Okay. Sir, am I clear, sir? हाँ, now Hi. it's clear. Am I audible, sir? Yes, now you are audible. Yes, sir. No, sir. Proper agriculture. I mean to say, I was not. I'm not talking about a salary of agri producers. I am talking about proper agriculture work, sir. Right, no problem, no problem. If it is something, you see, actually idea ये है कि जब आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपका वोकेशनल ट्रेनिंग होना चाहिए इन जनरल। बट ये फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास है, आपके बोर्ड ऑफ स्टडीज के पास में है, कि अगर आपका बोर्ड ऑफ स्टडीज ये समझता है कि ये वोकेशनल कोर्स को, ये वोकेशनल सब्जेक्ट को करने से या ट्रेनिंग एग्रीकल्चर के लेने से उसको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन अगर मिल रहा है एग्रीकल्चर के बारे में, जो उसके बाद के करियर में या उसके डाइवर्स करियर में उससे जब अलग होता है उसमें भी उसको मदद मिलती है, तो क्या प्रॉब्लम है? Yes. एटलीस्ट एनईपी 2020 तो यही तो कह रहा है कि हम कहाँ मना कर रहे हैं भाई। ये आप अपने विजडम से डिसाइड करो ना कि तुम्हें क्या लेना है। ये आपका विजडम है, आपके बोर्ड ऑफ स्टडीज का विजडम है। अगर आपको लगता है कि इससे स्टूडेंट्स के करियर में बेनिफिट होगा बाद में जाकर के, तो क्यों नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। एनईपी 2020 डज नॉट से नो, और जहां कहा जाता है नो, वहां यह समझिए कि एनईपी 2020 की अंडरस्टैंडिंग उसके आत्मा को नहीं समझा है, उसके शरीर को देख करके वो डिसीजंस ले रहे हैं। Okay, sir. ओके। Good evening, sir. I am Ninad Bodhankar from Pandit Ravi Shankar Shukla University, Raipur. आपके वाइस चांसलर साहब। नमस्कार। So my question is, the university can design a syllabus. Okay, it can be in the higher education. We are three players here: the university, higher education department, and colleges. So if the university designs the syllabus, and how the higher education department will implement it, because every university has got their own jurisdiction and they cannot overrule that. So if a student studying in one university wants to shift to other university,
how this NEP will it be feasible for him to transfer? अभी एक NEP Can 2020 I take this question? ABC एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स NEP 2020 हैज मैंडेटेड, और वो ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुका है। यूनिवर्सिटीज को उसको अडॉप्ट करना है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। इसका मतलब ये है कि एक यूनिवर्सिटी में या एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जो आपने क्रेडिट्स अर्न किया है और दूसरी जगह पर जाकर के बाकी क्रेडिट्स अगर आप अर्न करते हैं, और अगर दोनों का को टोटल करने पर आपको अंडर ग्रेजुएट डिग्री के बराबर वो क्रेडिट हो जाता है, तो दूसरी डिग्री आप दूसरा यूनिवर्सिटी आपको वो डिग्री देगा। So यही तो फ्लेक्सिबिलिटी NEP ने दिया है। ABC it is called Academic Bank of Credits that has already been and is being implemented. Now universities will gradually start adopting it. Yes, it is there. Right. So another question. Can I please add to it? Yes, yes. Oh, sir, please. I will just for a piece of information that the Directorate of Higher Education and the Department of Higher Education of Chhattisgarh has already instructed all colleges and the universities to get the fresh students registered and the students who have taken admissions in second year, third year, to get them registered on ABC portal. Oh. And a lot of initiatives have already been taken. For example, our registrar has got 20,000 students registered on the ABC of the first year and the second year, third year students. So that has already have taken place. If a student who has, say, done a first year graduation from this university and wants to take admission in, say, Pandit Ravi Shankar Shukla Vishwavidyalaya in the second year, so the Academic Bank of Credit and the unique ID would simply be transferred. The credit would be transferred to the Pandit Ravi Shankar Shukla University. So he need not. The only thing is to be, because it deals with the CBCS system that is yet to be adopted. Thank you. Right. So you got the answer. You see, आप लोगों ने मुझे एज एक्सपर्ट तो बुलाया है, लेकिन आपके बीच में ही इतने बड़े अच्छे जानने वाले हैं प्रोफेसर मनोज कि मैं क्या बताऊं। I am so impressed, and he is a very good speaker. The way, in a cool way, he explains things. I'm really a fan. I'm become fan of yours, sir. और आप रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी में वहाँ आपके तो SN शुक्ला जी हैं। वो हमारे बहुत ही क्लोज मित्र हैं भाई। दूसरा एक क्वेश्चन था कि जैसे बीवोक का कोर्स है हमारे यहाँ, तो बीवोक का कोर्स है ना, लड़का पढ़ता क्यों है? कोई छात्र इसलिए पढ़ता है कि उसको नौकरी मिले, तो वो PSC एक होता है या व्यापम है हमारे छत्तीसगढ़ में, यहाँ पे वो डिग्री रिकॉग्नाइज नहीं है। तो ऐसे छात्रों का भविष्य के साथ हम खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं, है ना? अभी तक एक बात समझ लीजिए सर कि बीवोक जो है वो आपको एक्स्ट्रा ट्रेनिंग तो दे रहा है, लेकिन आप जो पढ़ाई कर रहे हैं वो दूसरी चीज में वो सप्लीमेंट कर रहा है आपके बाकी चीजों के, आपको एक और भी एस्पेक्ट को डेवलप करने में। आप बीवोक को ही सिर्फ नौकरी का बेस नहीं बनाए, वो तो मजबूरी जब उसकी होगी तभी वो बीवोक से रिलेटेड किसी जॉब, कहीं भी जॉब ढूंढने की कोशिश करे। अदरवाइज जो आपने वोकेशनल जो कोर्स उसको पढ़ाया है, that should be adding to and supplementing to the main degree. So that main degree में पढ़ने के अलावा उसने अपने पर्सनैलिटी में या अपने मतलब अपने आप में उसने एक और भी कुछ एक्सपर्टीज गेन की है जो उसके लाइफ में कहीं जाकर के उसकी मदद कर सकती है। दैट इज नॉट द सोल आइडिया कि वो उससे जॉब ही पाले। सो दैट इज नॉट द कंसर्न। अगर उसकी मजबूरी होगी और अच्छा वो वोकेशनल ट्रेनिंग पा चुका होगा तो हो सकता है उसमें भी उसको जॉब मिले। तो जॉब थ्रेट इज नॉट ए पॉइंट इन दिस पर्टिकुलर करिकुलम जिसमें कि वोकेशनल आप पढ़ा रहे हैं। और कोई पार्टिसिपेंट्स? मुझे लग रहा है काफी देर तक हम लोगों ने बात कर लिया, लोगों को चाय की लगी होगी और या भूख लगी होगी। And unfortunately, मैं वाइस चांसलर साहब के साथ नहीं हूँ, otherwise I would be sipping a cup of tea with him or Dr. Neema. सर सर एक छोटा सा पॉइंट है सर। हाँ प्लीज। आप मतलब थोड़ा सा इलैबोरेशन मैं चाहता था, क्योंकि सर अभी बटिंग टीचर है यूनिवर्सिटी में सर, और यूनिवर्सिटी नहीं आ पाई, कुछ गूंज रही थी। एक मिनट।
सर आप वहीं पर कोई और डिवाइस तो ऑन नहीं है जो कनेक्टेड हो। सर अगर 2 डिवाइस आपने इसी पर जोड़ा हुआ तो एक को बंद कर दीजिए। सर अभी आ रही सर? हाँ, अब क्लियर आ रही है। एक स्टेटमेंट सर आपने दिया है और हम लोग थोड़ा सा उस पर फोकस भी करना चाहते हैं। बेसिकली चूंकि हमारी यूनिवर्सिटी बड़ी यंग है और हम लोग भी सब यंग हैं और अभी 13 साल का भी हमारा जर्नी है इस यूनिवर्सिटी का। तो आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है और इसमें थोड़ा सा एम्फेसिस चाहता था कि जैसे आपने कहा है कि सभी स्टूडेंट से है और एनईपी ये सभी टीचर से अपेक्षा करती है कि जो बच्चे पर ऐसे ट्रिगर पॉइंट पे फोकस करे जिससे कि वो ओवरऑल आगे जो है अपना ओवरऑल डेवलपमेंट जो होलिस्टिक डेवलपमेंट होलिस्टिक इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं। सो इसमें थोड़ा एलैबोरेशन कि व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटीज जो है वो टीचर्स मैं बता रहा हूँ या बिल्कुल सही। आपने सर प्लीज आपने बहुत ही की पॉइंट पकड़ा है। एक्चुअली सेंटेंस कुछ इस तरह का था, इफ आई रिमेंबर, कि क्लासेस शुड बी ट्रिगरिंग पॉइंट्स, ओके कि वो और क्यूरियस हो जाएं कि हमें और इसमें पढ़ना है। जैसे बचपन में नानी कहानी सुनाती थी तो कहानी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए वो कुछ ऐसे ट्विस्ट करती थी कि बच्चे पूछ, अरे नानी उसके बाद क्या हुआ, अरे नानी उसके बाद क्या हुआ। तो बच्चों में जैसे कुछ भी हम पढ़ा रहे हैं तो उस पढ़ाने में, जैसे मैं पढ़ाता हूं क्लासरूम में, तो मैं क्वेश्चन से शुरू करता हूं, किसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से शुरू करता हूं। तो जब आप प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल्स को अगर आप दे करके और तब अगर आप पढ़ाते हैं, जो रिसर्च के डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसको उसमें इंटीग्रेट करके आप पढ़ाते हैं, तो बच्चों की जिज्ञासा अपने आप उसमें आ जाती है। आप कैसे उनका इंटरेस्ट, मतलब उनको कोरिलेट करना है प्रैक्टिकल चीजों के साथ में। अन्यथा आज की तारीख में वाइस चांसलर साहब इसको बेहतर समझेंगे कि चैलेंज सिर्फ इतना नहीं है कि बच्चों का एडमिशन आपके यूनिवर्सिटी या कॉलेज में हो जाए, उससे बड़ा चैलेंज आज का है कि उन बच्चों को क्लासरूम में रिटेन करना। और क्लासरूम में वो तभी रिटेन होंगे जब आप कुछ डिफरेंट बताएंगे, क्योंकि जो आप पढ़ाने जा रहे हैं वो ऑलरेडी अगर गूगल पर अवेलेबल है तो वो क्लासरूम में क्या पाएगा। तो हमें अपने क्लासेस को इंटरेस्टिंग बनाना है। तो क्लास को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हर टीचर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ले सकता है कि डे टू डे लाइफ में कहीं गया, कुछ हुआ, कुछ भी, उसको कोरिलेट कर दीजिए आप अपने टॉपिक के साथ में। बच्चों के का कॉम्प्रिहेंशन बढ़ता है, क्यूरियोसिटी बढ़ती है और हर जगह वो खुद साइंस को लगाना शुरू कर देगा। तो मॉडर्न नॉलेज जो अभी डेवलप हो रहा है, रिसर्च एक्सेट्रा, एंड डिलीवरी को हमको इंटरेस्टिंग बना करके अगर हम दें क्लासरूम में, हालांकि ये तो इंडिविजुअल अप्रोच है, हर टीचर को उसमें कोई इंटरफियर नहीं कर सकता है, बट अगर कभी कभी हो सके तो अच्छे जैसे स्पीकर्स होते हैं, किसी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स हैं, उनको बुला करके सिर्फ उनके टीचिंग, आर्ट ऑफ टीचिंग को टीचर्स लोग देख लें। आज जो मैं हूं, मुझे लोग कहते हैं कि आप बहुत अच्छी क्लास लेते हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं। मैं इंडिविजुअली नहीं बन गया बहुत अच्छा टीचर, मुझे कॉलेज में बहुत अच्छे टीचर मिले, आईआईटी में बहुत अच्छे टीचर मिले। अगर मेरे पर्सनैलिटी को एनालाइज किया जाए तो उन टीचर्स के कुछ इंग्रेडिएंट्स मुझ में मिलेंगे जो कि मैंने अपने अनुसार इम्प्रोवाइज कर लिया है। सो 2-4 टीचर भी अगर अच्छे होते हैं तो उससे बाकी सारा फैलता है। वो तो कुछ बाहर से लिया, कुछ अपनी पर्सनैलिटी से उसमें जोड़ा और आपने एक यूनिक कैरेक्टर डेवलप कर लिया कि आपके क्लास को सुनने के लिए बच्चे आ रहे हैं। आज मैं पहले इंप्रेशन में वाइस चांसलर की बात को सुन करके इतने अच्छे से ठहराव के साथ उन्होंने कहा कि मुझे पहली बार में इंप्रेस हो गया। मैं नहीं, ही हैज अ वेरी नाइस वे ऑफ डिलीवरिंग थिंग्स, कूल काम वे में। तो ये चीज थोड़ा समझना होगा टीचर्स को। क्लासरूम शुड बी इंटरेस्टिंग, classroom should be having something that is not available on Google, and if at all that is available, the delivery style should be in a way कि स्टूडेंट को लगे यार यहाँ कुछ मिला हमें। ये कुछ चीजें हैं सर, अगर हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। आई थिंक आई हैव आंसर्ड यू और नॉट? थैंक यू सर, थैंक यू, वेरी वेल सेटिस्फाइड सर। थैंक यू सो मच। कोई और पार्टिसिपेंट्स एक आध क्वेश्चन और पूछ सकते हैं? सब लोग देख रहे हैं कि सर ने एक ग्लास वाटर भी नहीं पिया, 1.5 घंटे से बोल रहे हैं। तो अरे नहीं सर, जब मैंने वो सर का इंटरेस्ट देखिए, नॉलेज वाइस चांसलर साहब ने सुना है जो मैं वो लेक्चर दिया सर, 1.5 घंटे मैंने लेक्चर दिया था
उसके बाद कम से कम 1.5 घंटे उसके बाद क्वेश्चन सेशन चला था। ओह, वो चलता है, कोई बात। असल में हम मास्टर लोगों को क्या है सर, बोलने की आदत हो गई है। अभी आप तो सुन रहे हैं ना, जब आप भी बोलने लगेंगे तो फिर आप भी पानी नहीं पिएंगे, बोलते चले जाएंगे। ये तो हमारी कैरेक्टरिस्टिक होती है हम टीचर्स की। सर थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, हम तो फिर इस सेशन को माननीय कुलपति साहब चाहते हैं कि क्लोज करना चाहेंगे, तो क्लोज करने के पहले माननीय कुलपति साहब ये प्रिविलेज लेना चाहते हैं कि मैं वोट ऑफ थैंक्स प्रपोज करूंगा। थैंक यू सर। तो मैं बड़े सम्मान के साथ माननीय कुलपति सर को आमंत्रित करता है कि प्लीज प्रपोज अ वोट ऑफ थैंक्स। माननीय कुलपति सर। वोट ऑफ थैंक्स तो हमारे रजिस्ट्रार साहब ही देंगे, पर एक मुझे इसकी हिम्मत तो नहीं है और मेरी ये दक्षता भी नहीं है कि प्रोफेसर पांडे जी के भाषण के पश्चात मैं उन्हें नरेट करूं। ये क्षमता तो मेरी नहीं है। फिर भी मैं प्रोफेसर पांडे को बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि आपने इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स और काफ़ी हद तक भारतवर्ष भी इन समस्याओं से जुड़ा हुआ है, दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, rapid changes in the knowledge system at world level, climate changes and our concerns, changes in the pattern of medicines and way of medicines that they are taking place, and the types of illnesses that the entire world is facing with, and the pressing need, and that requires a multidisciplinary approach to solve these problems, gives rise to the discussion of National Education Policy 2020. उन्होंने पूरा विजन राष्ट्रीय शिक्षा नीति का हम सभी के सामने रखा, एक रोड मैप, एक होलिस्टिक डेवलपमेंट of the personality of our youths. मैं कहता भी हूँ कि भारत सबसे युवा देश है क्योंकि मीडियन एज 28 है। जापान, यूएसए और बाकी कंट्रीज की मीडियन एज अगर आप स्टडी करें, that ranges between 38 to 48. So therefore India is the youngest country, and therefore हमारे नीतिकारों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आधार बनाया पूरे विश्व में ज्ञान के रूप में या वैश्विक स्तर पर एक ज्ञान महाशक्ति के रूप में भारत आगे आए जैसे कि पहले था। प्रोफेसर पांडे ने बहुत अच्छी तरह राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिन विषयों पर आधारित है, मुख्य रूप से मल्टीडिसिप्लिनैरिटी, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच से शोध, रिसर्चेस एंड ट्रांस डिसिप्लिनरी अप्रोच, जो कि आत्मा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति की। और मैनेजमेंट में एक प्रिंसिपल भी है कि अगर आपके पास यूनिक सेट्स ऑफ नॉलेजेस हैं, रेंज इन a big range, if you have your own experiences and knowledge system on a variety of disciplines, और उनमें से किसी एक का या दो का स्पेशलाइजेशन है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। कभी कभी हम लोग मजाक में बोला करते थे कि जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, तो जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ फ्यू is the national education policy. Precisely. But still, master of all, jack of all and master of none, that is covered by the liberal education that is still there in the national education policy. उन्होंने हमको बताया भी कि कैसे
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये फीचर करती है कि हर इंस्टीट्यूशन में कम से कम 3000 विद्यार्थी होने चाहिए, या तो वो टीचिंग सेंट्रिक इंस्टीट्यूशन होगा या फिर रिसर्च सेंट्रिक इंस्टीट्यूशन होगा। अगर छोटे छोटे इंस्टीट्यूशंस अलग अलग स्पेशलाइजेशंस के साथ हैं तो उनकी कैसे क्लस्टरिंग की जाएगी। पुराना नॉलेज सिस्टम और वर्तमान नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जब तक अंतर नहीं पता होगा तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को हम लोग लागू करने में कठिनाई होगी। यूनिवर्सिटी और कॉलेज की डिफिनीशंस क्या हैं? नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क कैसे प्रयोग किया जाना चाहिए वोकेशनल एजुकेशन के डिफरेंट पाठ्यक्रमों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति और अपने पाठ्यक्रमों में सम्मिलित करने के लिए। मैं एक समय अंतर्राष्ट्रीय लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो आगे आने वाले 25 वर्षों में 75% जॉब्स अब स्टेम पे आधारित होगी, जैसा कि प्रोफेसर पांडे ने बताया। इसलिए प्रेसिंग नीड है कि स्टेम पर विशेष ध्यान दिया जाए। रिसर्च भी ग्रेजुएशन से ही आ जानी चाहिए, और इसीलिए प्रोफेसर पांडे जब एक्सप्लेन कर रहे थे वो एक स्ट्रक्चर प्रोग्राम ऑफ फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तो वहाँ पर रिसर्च भी बहुत ग्रेजुअली इंक्रीज कर रही है। पहले फ्यू ईयर्स, दैट इज फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, मल्टी डिसिप्लिनरिटी एंड वोकेशनल एजुकेशन पे ज़्यादा जोर है। जैसे ही आप थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में आते हैं तो एजुकेशन पॉलिसी आपको डिटेक्ट कर लेती है कि आप एक सीरियस लर्नर हैं, और इसीलिए फिर धीरे धीरे रिसर्च का इनपुट बढ़ता जाता है। और थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट्स भी हैं। बहुत इंटेलिजेंटली ड्राफ्टेड पॉलिसी है। तो बहुत सारी चीज़ें आपने हम लोगों को बताई है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में जिन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, चूँकि कॉम्प्लिकेटेड है, आपने बहुत सरल तरीके से हमारे शिक्षकों और हमारे प्राचार्यों के मध्य रखा है। मैं आप सभी से आशा करता हूं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को उसकी लेटर और स्पिरिट में लागू करने में हम सभी लोग एक साथ मिलकर और आप जैसे विद्वान के मार्गदर्शन में कार्य करेंगे। और आपने अब इस विश्वविद्यालय के लिए, शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय के लिए समय निकाला। अन्य विश्वविद्यालयों के आचार्यों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि अभी कुछ ही दिन पहले ये शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय ने पंडित रविशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय के साथ MOU किया है, और अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के साथ MOU किया है। और हमारे बीच ये साझा हुआ था कि अगर हम सेमिनार या कॉन्फ्रेंसेस करते हैं तो हम शेयर भी करेंगे। वहाँ के शिक्षक हम सभी के साथ जुड़े हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आशा करता हूँ हम सभी लोग मिलके और भी इसी प्रकार की गतिविधियों में सम्मिलित होंगे, और प्रोफेसर पांडे सर का हम लोगों का मार्गदर्शन मिलता रहेगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम सभी लोग की तरफ से थैंक यू एवरीबॉडी। माननीय कुलपति साहब ने धन्यवाद दे दिया। मैं पार्टिसिपेंट्स की तरफ से भी धन्यवाद देना चाहता हूं, और इस संदर्भ में मैं मेरे विश्वविद्यालय के कुलसचिव आदरणीय श्री अभिषेक वाजपेयी सर को आमंत्रित करता हूं धन्यवाद ज्ञापन हेतु। अभिषेक सर। आज के इस NEP 2020 प्रोग्राम में मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित प्रोफेसर नरेंद्र कुमार पांडे जी, प्राध्यापक लखनऊ विश्वविद्यालय, माननीय कुलपति प्रोफेसर मनोज कुमार श्रीवास्तव जी, शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय, सभी प्राचार्यगण, विभिन्न विश्वविद्यालय से जुड़े प्राध्यापकगण एवं सभी अध्यापक, प्रोफेसर नरेंद्र कुमार पांडे सर ने अपने व्याख्यान में NEP की आवश्यकता, विजन और इम्प्लीमेंटेशन के बारे में विस्तार से चर्चा की। मुख्य रूप से NEP का इम्प्लीमेंटेशन में चुनौती है, और ये चुनौती हमारे बस्तर विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालय जहाँ पे मेन पावर में कहना चाहिए प्राध्यापकों की कमी है, तो और भी बढ़ जाती है।
ये चुनौती हमारे लिए एक अवसर है। हम इस चुनौती को अवसर में किसी प्रकार से परिवर्तित करते हैं। मैं प्रोफेसर अनिल कुमार पांडे को धन्यवाद देता हूँ और सभी अध्यापकों को, सभी प्राचार्यों को कहीं से बहुत ही कार्य से जुड़ने के लिए धन्यवाद देता हूँ एवं प्रोफेसर पांडे से अनुरोध करूंगा कि भविष्य में भी इम्प्लीमेंटेशन के ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में कोई सुविधाएं करेंगे तो अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में और इस अध्ययन के लिए जो भी आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सर। Thank you. मैं माननीय कुलपति सर की अनुमति से आज के इस व्याख्यान कार्यक्रम को की समाप्ति की अनुमति चाहूंगा। थैंक यू सर।